جی تو ہم آیت نمبر 40 میں پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے ہم کہ اللہ تمہارا ولی اور اللہ مددگار ہے تمہارا، یعنی صرف اور صرف اللہ پر ہی توکل اختیار کرو، اور توکل میں مکمل اسباب بھی اختیار کیے جائیں گے، اور مکمل طور پر اچھے طریقے سے اللہ سے دعا بھی مانگی جائے گی، لیکن ہمارا تکیہ صرف اور صرف اللہ پر ہی ہوگا، انحصار صرف ہمارا اللہ کی مدد پر ہوگا، اپنی محنت پر نہیں۔ لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں دی گئی کہ جی تم لوگ محنت ہی نہ کرو، محنت البتہ ہم پوری کی پوری کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آگے آگے آیت نمبر 41 اب وہ آیت ہے جس میں اللہ نے اب انفال کا اصول بتایا۔ انفال یعنی جو مال غنیمت ہے، اب تم لوگ اس کو بانٹو گے کیسے؟ کیا مطلب؟ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم لوگ انفال کے بارے میں سوال کرتے ہو آپ سے وسلم سے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تم کیا کرو؟ تم باقی چیزوں پہ دھیان دو، جو زیادہ امپورٹنٹ، جو تمہاری ترجیحات ہے نا، ان پہ تم دھیان دو، آپسی تعلقات پہ فوکس کرو، مقصد پہ فوکس کرو، بدر کا جو مقصد ہے جہاد پہ فوکس کرو، اور حقیقی مومن بننے پہ فوکس کرو، ٹھیک ہے۔ اس سب کے اوپر باقاعدہ 39 آیات کے بعد واپس اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ انفال کا بیسکلی کرنا کیا ہے، مال غنیمت کو بانٹا کیسے جائے گا۔ تو بیچ میں یعنی یہ جب ترجیح ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر بات کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ اس کے اوپر بات بعد میں ہونی چاہیے، یہ تقریباً ہم درمیان میں ہیں، اس صورت کے درمیان میں آ کے، یہ سیکشن 4 بالکل مڈل سیکشن بنتا ہے اس صورت کا، درمیان میں آ کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا جائے گا انفال کا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ یہ میں آیت آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیتی ہوں، آیت نمبر 41، ٹھیک ہے، یہ نیچے سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے کہ اب کیا کیا جائے گا؟ جان لو کہ جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے نا، اس کا جو خمس ہے وہ اللہ کے لیے ہوگا، اور رسول کے لیے، اور قرابت داروں کے لیے، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ مطلب جتنا مال غنیمت ہے سارا کا سارا، that will be divided into 5 parts، 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ 5 حصوں میں سے ایک حصہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک جو حصہ ہے نا، یعنی وہ 5واں حصہ بنا، جس کو یہاں پہ خمسہ کہا جا رہا ہے، اس کا 5واں حصہ، وہ ایک حصہ لے کے اس کے فردر 5 حصے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ فردر 5 حصے کس کے لیے ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے، نمبر 2 ذی القربہ یعنی آپ سے وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، والیتامہ، اب کون ہے جو معاشرے کے کمزور لوگ تھے، یتیم، نمبر 4 مسکین، نمبر 5 مسافر، مسافر بھی اس وقت بیچارہ ہوتا تھا، مظلوم ہوتا تھا، اس کو ضرورت ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 ہیں جن کو بیسکلی ایک حصہ جو ہے وہ فکس ان کا ہے، اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ اب جو باقی 4 حصے رہ گئے، وہ 4 ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ وہ بیسکلی باقی ساری فوج میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ باقی 4 حصے باقی آرمی میں بالکل ایکولی برابر برابر ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ اور اگلے حصے میں آج کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس شے پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر یوم الفرقان، فیصلے کے دن، جس دن 2 فوجوں کا ٹکراؤ ہوا تھا، مطلب کہ جب تمہارا ایمان اللہ پر مضبوط ہے، نمبر 2 اللہ نے اس دن یوم الفرقان پہ تمہیں فتح بھی دے دی، تو ان دونوں کی وجہ سے اب تم کیا کرو گے؟ تقسیم مال غنیمت کی ایسے ہی ہوگی جیسے کہ اللہ نے بتا دیا، اس پر اب مزید کسی قسم کا کوئی جھگڑا، کوئی بحث نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، اور یہاں سے ہمیں بہت امپورٹنٹ بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کا جو دن تھا اس کو کیا فرما رہے ہیں؟ یوم الفرقان، یہ آیت نمبر 41 ہے۔ اور یوم الفرقان مطلب فرق کر دینے والا دن، یعنی یہ وہ دن جس نے کہ یہ مقصد حاصل کر لیا کہ حق اور باطل کو بالکل الگ الگ کر کے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں سیکشن نمبر 5 میں، جو بیسکلی شروع ہوگا آیت نمبر 42 سے آگے 52 تک، اور جہاں پر میدان جنگ کا منظر اب ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ 42 میں کیا تھا؟ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم۔ جب تم لوگ قریب تھے، قریب والے کنارے پر تھے، اور وہ لوگ دور والے کنارے پر تھے، یعنی جنگ میں جب پوزیشننگ کی گئی، تم لوگ کس طرف تھے؟ تم لوگ بیسیکلی جو مدینہ کی طرف سے رستہ آتا تھا،
जो कि बेसिकली कौन सा रास्ता बनता है, मशरकी सिमत बनती है, उस तरफ तुम लोग थे, और जनूबी तरफ से बेसिकली जो मक्का की तरफ से रास्ता आता था उस तरफ ये काफिरीनों ने अपने खैमे लगाए थे, अपना बसेरा किया था। और काफिला जो था वो तुमसे नीचे था, इन लोगों का जो काफिला था वो जुनूब की तरफ था, वो नीचे की तरफ था, साहिल समंदर की तरफ से होकर आ रहा था। और अगर तुम लोग आपस में मियाद ठहरा कर निकलते तो भी वक्त मुकर्रर में तुम जरूर मुख्तलिफ हो जाते। मतलब अल्लाह ताला ने ये तुम्हारी मदद की कि ये पोजीशनिंग हो गई तुम्हारी, और तुम लोगों का एक दूसरे से आमना सामना हो गया। अगर तुम लोग तय करके निकलते ना कि इस दिन हमने मिलना है, इस वक्त पे हमने मिलना है, फिर भी तुम लोगों में इख्तलाफ हो जाता। यानी मुसलमानों का लश्कर और ये जो थे फौज, मुसलमानों की फौज और कुफार की फौज, ये लोग अगर आपस में वक्त तय करके दिन तय करके भी निकलते ना, फिर भी ऐसा इनका मिलाप ना होता, ऐसा आमना सामना ना होता, जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद ब खुद फैसला करके, खुद डिजाइन करके इनकी बकायदा पोजीशनिंग की और इनका आमना सामना अल्लाह ताला ने करवा दिया। किसी किस्म की तकदीम और ताखीर नहीं हो सकी, और अगर ये खुद करते तो ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होता। ये भी क्या है, ये एक तरह से अल्लाह ताला की मदद है। और आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि अल्लाह फैसला कर दे उस काम का जो होने ही वाला है। मतलब बदर का जो मकसद है वो हासिल हो जाए, वो इसी आयत में लिखा हुआ है जो कि मैंने पढ़ लिया, लियहलिका मन हलका अम बैयिना, ताकि जिसे हलाक होना है वो हलाक हो हक के ऊपर, बिल्कुल क्लियर कट वाजे जो बात है, हक वाजे हो चुका है, उसमें कोई शक नहीं रहा, उसके ऊपर अब वो हलाक हो जाए। यानी जिसने बातिल पे रहना है ना, अब वो हलाक हो जाए हक वाजे होने के बाद भी। वह यह मन हैया अम बैयिना, और जिसे जिंदा रहना है वो जिंदा रहे वाजे दलील की बिना पर। यानी हक आने के बाद जो हक पर कायम हो जाता है उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाए, और जो बातिल है उन्हें अलग करके उनको ही हलाकत हो जाए। सही। और इब्लीस का किरदार ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें, कि इब्लीस का क्या किरदार था। वो बेसिकली साथ आया था आर्मी के, जिसका जिक्र यहाँ पर आयत नंबर 48 में है। और मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम कुरान मजीद हम गज़वा बदर बल्कि पढ़ रहे थे कि इसका जिक्र बाकायदा कुरान मजीद में आया। ये आयत नंबर 48 देखिए और खुद सोचें, अगर अल्लाह ताला ना बताते मुसलमानों को कि ये इब्लीस आया था और फिर ये दुम दबा के भागा था, सीरत की किताबों में ये वाक़या हमें शायद मिलता ही ना। क्या है आयत नंबर 48 में, वइज़्ज़य्यन लहुम शैतानु अअमालहुम, और जब शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को मुज़य्यन कर दिया। वक़ाला, और उसने कहा, ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास, आज के दिन इंसानों में से ना तुम पे किसी को फतह नहीं मिलेगी। व इन्नी जारुल लकुम, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये क्या बनकर आया था, ये सुराका बनकर आया था ना, जो एक दूसरे बनु अबू बकर जो था, बनु बकर जो था सॉरी, उसका एक सरदार था, और उसकी शक्ल में ये इसने इन लोगों को ज्वाइन किया था, काफिरों को दारुन नदवा में, और इसने कहा था कि भाई वो पीछे से तुम लोगों पे हमला नहीं करेंगे, आराम सुकून से तुम लोग जाओ, जंग लड़ो, बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फलम्मा तराअतिल फिअतान, और जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए, नकसा अला अकीबैही, तो वो अपनी एड़ियों के बल पीछे को भागा। कौन पीछे को भागा? इब्लीस। जैसे लश्कर आमने सामने हुए, इब्लीस ने क्या किया? पीछे को भाग गया। वकाला, और उसने कहा, इन्नी बरी मिनकुम, मैं तो भाई बरात ला ताल्लुक हो गया हूँ मैं तुम सारों से, इन्नी अरा मा ला तराउन, क्यों? क्योंकि मैं वो सारा कुछ देखता हूँ जो कि तुम नहीं देख सकते। उसे क्या नजर आ रहा था? अब उसे अल्लाह ताला की मदद नाजिल होती हुई, फरिश्ते बेसिकली उतरते हुए हमले करते हुए उसको नजर आ रहे थे, तो वो दुम दबा के वहां से भागा। और मजीद क्या कहता है? इन्नी अखाफुल्लाह, मैं डरता हूँ अल्लाह से, वल्लाहु शदीदुल इकाब, और अल्लाह खूब सजा देने वाला है। अब देखिए हमें पता चल रहा है ये अल्लाह को मानता भी है, अल्लाह ताला से डरता भी है, और अल्लाह की सजा को, जन्नत और जहन्नुम को भी मानता है। फिर भी इसको तौफीक नहीं हुई ईमान की। क्यों? क्योंकि इसके में अकड़ थी ना, अकड़ और तकब्बुर, और अड़ गया अपनी ईगो, अपनी एरोगेंस, हॉटीनेस, अपनी प्राइड की वजह से ये अड़ गया। हक को जानते हुए इसने हक को झुठलाया, इनकार किया, और बातिल की तरफ हो गया, और जहन्नुम में सबसे पहले ये फेंका जाएगा। इसको ये सारा कुछ पता, और खुद कह रहा है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। और सोचे दुनिया में कितने लोग हैं, इंसान कितने ज्यादा हैं जो बेसिकली हक को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी मानते क्यों नहीं है हक को? सिर्फ और सिर्फ ये तकब्बुर की वजह से, अपनी अकड़ की वजह से, अपनी अना की वजह से, कि जो हमारे तरीके हैं, जो मेरा बेसिकली तरीका वो ज्यादा अच्छा है,
मैं उसको नहीं छोड़ सकती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने खुद देखा, मेरी एक कोलीग थी, वो रोजे नहीं रखती थी, रमजान के फर्ज रोजे नहीं रखती थी। वो कहती थी जी मेरी रूटीन डिस्टर्ब होती है, मेरी खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, ऑफिस की रूटीन डिस्टर्ब होती है, मैं रोजा नहीं रख सकती। मतलब एक हक है, रोजा रखना फर्ज है, ये हक अल्लाह ने आपको बता दिया। आप उसको रिजेक्ट किस बात पे कर रहे हैं? अपने लिए, अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अपने अना और अपनी किबरियाई के लिए, कि मेरी जो रूटीन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा बड़ी है, वो ज्यादा अहम है, वो नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। समझ आई? तो ये ऐसे लोगों का, ये इब्लीस का ये बेसिकली किरदार था, और इससे हमने ये सबक भी हासिल कर लिया। दोबारा से आयत नंबर 42 में बदर का मकसद बताया जा रहा है। आयत नंबर, एक सेकेंड, आयत नंबर में, हाँ जी, आयत नंबर 42, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली। और इसमें ये बता दिया गया ना कि जो हक के खिलाफ जाएंगे उन्हें हलाक कर देंगे अल्लाह ताला, और जो हक को मान लेंगे वो जिंदा रहेंगे। अब आगे 43 एंड 44 में दोबारा अल्लाह ताला अपनी मदद का जिक्र कर रहे हैं। इस जुरी का हुमुल्लाहु फी मनामिका कलीला, और जब अल्लाह ताला आपको दिखा रहे थे ख्वाब में उनकी तादाद बहुत ही कम, वलौ अराकहुम कसीरा, और अगर वो आपको दिखा देते कसीर तादाद में, नफशिलतुम वला तनाज़अतुम फिल अम्र, तो मुसलमानों में तो मुसलमान बेसिकली कमजोरी दिखाते और मामले में इख्तलाफ कर लेते। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा 16 रमजान की के रात को, कि उनकी तादाद जो है वो बहुत कम है, 100 के करीब है, या 200-300 से ज्यादा नहीं है। ये कम तादाद दिखाने का मकसद क्या था? बेसिकली जो दिखाया गया ना, उनकी आर्मी का कुछ हिस्सा दिखाया गया, कुछ लोग उनकी आर्मी के दिखाए गए थे। ये किस लिए दिखाया गया, वजह भी अल्लाह ताला ने बता दी, ताकि तुम लोग जमे रहो, एकदम से हैरान परेशान, घबराना मत, और भाग मत जाना, ठीक है। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने जो काफिर थे ना, बेसिकली उनको भी अल्लाह ताला ने इनकी तादाद, जो उनकी तादाद बेसिकली कम करके, और उनकी तादाद तो ऑलरेडी कम थी, मुसलमानों की तादाद ऑलरेडी कम थी। ठीक है बेटा, इसको आप हटा दे, फिर बाद में कर लेंगे। उन मुसलमानों की तादाद तो ऑलरेडी कम थी, तो काफिरों को तो दिख ही कम तादाद रही थी, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था? काफिरों के हौसले बुलंद हो रहे थे कि जी हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, मुसलमान तो इतने कम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ख्वाब में तादाद दिखाई ही कम, यानी आर्मी का कुछ हिस्सा दिखाया, बाकी हिस्सा अल्लाह ताला ने छुपा दिया, ताकि मुसलमानों के हौसले शुरू में ही पस्त ना हो जाएं, बल्कि वो अच्छे तरीके से जम कर लड़ सके। और दोबारा 45 से 47 तक अल्लाह ताला जिहाद के अमूमी असूलों पर दोबारा बात हो रही है, और वो क्या है? हुज़ैफा अब्दुल हादी, बेटा बाहर चले जाओ, शोर ना करो। हाँ जी, वो क्या है? आयत नंबर 45 में क्या बात हो रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। तो जो कोई भी बेसिकली अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह की से फतह चाहता है, वो बेसिकली क्या करे? वो साबित कदम रहे, वो सबर से काम ले, आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे, और वो अल्लाह ताला का जिक्र कसरत के साथ करे, व अतीउल्लाह व रसूला, और अल्लाह की और उसके रसूल की अताअत करे, वला तनाज़उ, और वो किसी किस्म का कोई भी तनाज़ा ना करे, फतफशलु व तज़हब रिहुकुम वस्बिरु, और वो सबर करे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। तो बेसिकली जिहाद के जो अमूमी असूल हैं, उनके अंदर ये सब आएगा। जब इन सब से, इन सब खूबियों के जरिए से मदद ली जाएगी ना, अल्लाह का जिक्र भी कसरत से किया जाएगा, अल्लाह और रसूल की अताअत भी की जाएगी, मुसलमान आपस में तनाज़ा नहीं करेंगे। ये जब हम पढ़ते हैं ना गज़वा उहद के बारे में, सूरह आले इमरान में, अल्लाह ताला फरमाते हैं वतनाज़उ, कि गज़वा उहद में हुआ क्या था? उन्होंने तनाज़ा कर दिया, आपस में इख्तलाफ जब बर्पा हो गया, तो बेसिकली वो लोग हार गए, मुसलमान हार गए। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि बदर में बेसिकली तुम तनाज़े से बचो, तनाज़ा जंग में, जिहाद में नहीं कर सकते। और इसके अलावा आम हालात जिंदगी में भी मुसलमान अगर चाहते हैं कि अल्लाह का दीन गालिब रहे, मुसलमानों का अपर हैंड रहे, मुसलमानों के ऊपर काफिरों का गलबा ना हो, तो आपसी ये जो इंटरनल फाइट्स होती हैं, इस सारे से बचा जाए, ठीक है। इंटरनल वॉर से, ये जो खाना जंगी हो जाती है, आपस में शिया सुन्नी इख्तलाफात चल रहे वगैरह, बहुत सारे इख्तलाफात चल रहे, इस सब से बचो, इकट्ठे होके इत्तेफाक से रहो, साबित कदम रहो, सबर करो, अल्लाह के जिक्र को कसरत से करो। अब कितना हो रहा है अल्लाह का जिक्र? हमारे सामने है कि दुनिया में या इवन मुस्लिम कंट्रीज में कितना हो रहा है, अल्लाह और रसूल की अताअत कितनी हो रही है, बेहयाई किस स्पीड के साथ फैल रही है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम देख रहे हैं, अल्लाह और रसूल की अताअत बिल्कुल नहीं हो रही। तो नहीं हो रही, तो फिर आजकल हमारे मुसलमानों के ये हालात है। अब आगे देखिए आयत नंबर 49 में क्या बात हो रही है।
آیت نمبر 49 میں دوبارہ ہمیں اللہ تعالیٰ توکل کا سبق دے رہے ہیں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِيمٌ، تو جو کوئی توکل کرتا ہے اللہ پر تو اللہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے. تو توکل کرو اللہ پر، پورے کے پورے اسباب اختیار کرو، دعا کرو، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. اسٹارٹ کرتے دوبارہ. آیت نمبر 49 میں بات ہوگی ہماری. اب آگے آیت دیکھیے، سیکشن نمبر 6 پہ ہم جا رہے ہیں. یہ ساری آیات ہم نے دیکھ لی، پڑھ لی. اور سیکشن نمبر 6 میں دیکھیے آیت نمبر 53 to 64. اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ 53 سے 58 تک اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قوموں کا جو آپسی رویہ ہے، جو بیسیکلی معاہدات ہوئے تھے، میثاق ہوئے تھے، اس میں وہ کیا ہونا چاہیے. جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہاں پر یہودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ٹچ کریں گے کہ یہودیوں کے ساتھ بیسیکلی جو معاہدے ہوئے تھے اس کا بیسیکلی یہاں پر ذکر ہے. تو یہودیوں کے ساتھ جو معاہدے ہوئے انہوں نے اس میں کیا کیا تھا؟ خیانت کرنی شروع کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے کہ اب تم سارے کے سارے جب مدینہ میں اکٹھے رہ رہے ہو تو آپسی خیانتوں سے بچو، آپسی سازشیں وغیرہ اس سب سے دور رہو اور برابری کا رویہ اختیار کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ معاہدے میں جو شرائط قائم کی گئی ہیں ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اسی طریقے سے فالو کیا جائے گا. اور آگے آیت نمبر 60 میں دوبارہ سے جہاد کا ایک اور عمومی اصول بتایا جا رہا ہے. یہ سارے پوائنٹس جو ہیں یہ سورت میں سے الگ الگ سے نکال کر میں نے انہیں خود سے ہیڈنگز دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب جب آپ نے جہاد کا فلسفہ یا عمومی اصول آپ نے خود جب نکالنے ہوں گے نا تو اب آپ ان آیتوں کو اکٹھا کر لیں تو وہ آپ کے نکل آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب 60 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کی حد تک طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے. کیا مطلب؟ رباط الخیل، سوری. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پریپریشن ہر وقت ہمیشہ ہونی چاہیے مومنین کی، مسلمانوں کی، تاکہ ان کا ہمیشہ غلبہ رہے کافروں کے اوپر اور اللہ کے دین کے اوپر باقی ادیان جو ہیں وہ غالب نہ آئیں. تو اس کے لیے تمہاری نفری ہمیشہ تیار ہونی چاہیے، مطلب سیلف ڈیفenس کے اوپر ہمارا خرچہ ہونا چاہیے اور ڈیفنس کے اوپر ہماری آرمی کے اوپر ان کی تیاری کے اوپر ہمارا دھیان ہونا چاہیے اور ترجیحات میں یہ کام ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے ہمارے ایٹ لیسٹ ہماری کنٹری میں آرمی کے اوپر بہت زیادہ خرچ بھی کیا جاتا ہے اور ان کو تیار، ان کی ٹریننگز بھی کی جاتی ہیں. اور گھوڑے تیار ہو مطلب جو بھی انہیں سواریاں چاہیے، ٹینکس چاہیے، پلینز چاہیے، جو کچھ چاہیے اور ہتھیار وغیرہ چاہیے وہ سارے کے سارا کچھ تیار ہونا چاہیے. اور 54 نمبر آیت میں واپس سمجھاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ انہیں مثال دے رہے ہیں فرعون کی، آل فرعون کی مثال دے کر انہیں سمجھایا جا رہا ہے. اور کیوں؟ میں نے بتایا تھا آپ کو غزوہ بدر کے اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ابو جہل جو ہے یہ میری امت کا فرعون تھا، یہ مارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا. تو اس صورت میں اس لیے اللہ تعالیٰ آل فرعون کی مثال سے سمجھا رہے ہیں، کدا ابھی آل فرعون، جیسا کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے بھی تھے. یہ کون سی آیت ہے؟ یہ آیت نمبر 54 ہے جی. کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. فأہلکناہم بذنوبہم، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. وأغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو غرق کر دیا. وکل کانوا ظالمین، اور سب کے سب ظالم تھے. وہ لوگ بھی، انہوں نے بھی حق کو نہیں مانا تھا، باطل پر جمے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کو غرق کر دیا اور تمہارا بھی انجام اس سے کچھ مختلف نہیں ہوا ہے. اب آگے آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دوبارہ بدترین جاندار کی بات ہو رہی ہے جو کہ شروع میں بھی ہوئی تھی. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یقیناً بدترین چوپائے جو ہیں اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. تو جو ایمان نہیں لاتے وہ بیسکلی بدترین جاندار ہیں اور وہی بدترین جاندار ہمیشہ رہیں گے. جو اپنے خالق کو نہیں مانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کا حق نہیں دے سکتا، وہ بہترین ہو ہی نہیں سکتا. تو آیت نمبر 63 اینڈ 64 اگین اللہ تعالیٰ اپنی مزید مدد کا ذکر کر رہے ہیں. مزید مدد اللہ تعالیٰ نے کیسے کی؟ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں یہ. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا
बैन क़ुलूबिहिम, और अगर तुम सारा का सारा जो कुछ जमीन में है ना वो सब भी खर्च कर देते ना, तुम एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत नहीं डाल सकते थे। क्या मतलब ये कि अल्लाह ताला ने जितने भी सहाबा थे, मुहाजिरीन थे, जिनमें पहले पुराने जमानों में कुछ ना कुछ चक्कलेश चलती रहती थी किसी ना किसी वजह से, क्योंकि कबीलों में डिवाइडेड थे ना ये लोग, मुहाजिरीन भी थे, वो भी आखिर बनो कुरैश थे, लेकिन कुरैश इटसेल्फ कबीलों में डिवाइडेड था, तो थोड़ी बहुत अनबन तो चलती थी। और फिर अंसार के दिलों में इनके लिए कौन सी उल्फत थी, इतनी ज्यादा जान पहचान तो नहीं थी ना, और मुहाजिरीन के दिलों में भी क्या ही उल्फत होगी। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने इन सब के दिलों को जोड़ दिया, इनके दिलों में मोहब्बत बढ़ा दी, मोहब्बत डाल दी, और अगर आप सारी की सारी दौलत भी खर्च कर देते ना तो आप इनके दिलों में उल्फत नहीं डाल सकते थे। क्या मतलब, मोहब्बत और उल्फत जो है वो अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह का तोहफा है, जिसको अल्लाह ताला हमारे दिलों में डालते हैं। और हम जिसके लिए हमारे दिल में जो मोहब्बत होती है ना, खसूसन अल्लाह की खातिर हम जो मोहब्बतें करते हैं, जैसे अंसार और मुहाजिरीन जो थे वो क्यों कर रहे थे एक दूसरे से मोहब्बत, अल्लाह की खातिर उनकी मोहब्बत थी। हम रसूल से मोहब्बत करते हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अपने उस्ताद से करते हैं, अपने स्टूडेंट से करते हैं, अपने बहन भाइयों से, मजीद रिश्तों से, ये जो जितनी भी मोहब्बतें बेसिकली अल्लाह ताला हमारे दिल में डालते हैं, और ये अल्लाह ताला की मदद होती है। और ये अगर अल्लाह की मदद ना हो तो हमारा आपस में एक दूसरे के साथ गुजारा मुश्किल हो जाए, और हम कोई भी जो मकसद होगा हमारा उसको हम हासिल नहीं कर सकेंगे। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, लेकिन ये तो अल्लाह ने उनके माबीन उल्फत पैदा कर दी थी। इन्नहु अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह बहुत ज्यादा जबरदस्त इक्तदार वाला, बहुत ज्यादा हिकमत वाला है। और 61 नंबर आयत में तवक्कल अलल्लाह का हुक्म फिर से दिया जा रहा है। ये थर्ड टाइम हो गया जो कि दोबारा तवक्कल की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि गज़वे बदर में हमने इसका मुजाहिरा देखा, अल्लाह ताला पर तवक्कल कैसे किया जाता है इसका मुजाहिरा हमने गज़वे बदर में देखा। आजकल हम लोग बिल्कुल इसके मुनाफी चलते हैं, हम लोग या तो दुआएं मांग रहे होते हैं और इलाज नहीं करा रहे, हायर एजुकेशन भी हासिल नहीं कर रहे, कुरान को भी नहीं समझ रहे, अपने ईमान पे भी काम नहीं कर रहे, हम कोई कुछ, हम जॉब्स भी नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस की ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं कि ग्रोथ के लिए नई स्ट्रेटेजीज, मार्केटिंग वगैरह के लिए कोई जरूरत नहीं है, बस अल्लाह ने जितना मुझे देना है ना अल्लाह ताला मुझे दे देंगे, हम ये सोच के बैठे होते हैं। हालांकि अल्लाह ताला क्या कहते हैं, मुकम्मल असबाब इख्तियार करो, 100% एफर्ट पुट करो, जितनी कोशिश कर सकते हो वो करो, तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, तो ये जो हम थोड़े के ऊपर इक्तिफा करके बैठ जाते हैं ना, इसको यहाँ पर बेसिकली डिनाई किया जा रहा है। वतवक्कल अलल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह पर तवक्कल कीजिए, यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। जानने वाला है कि तुम सब ने कितनी मेहनत की है, और सुनने वाला है तुम्हारी दुआओं को। ये सारी आयत हमने देखनी। अब लास्ट सेक्शन की तरफ हम आ गए हैं। आखिरी सेक्शन में क्या बात हो रही है, 65 से 75, फिर इंशाल्लाह ये सूरत मुकम्मल हो जाएगी। 65 से 71 में दोबारा जिहाद के लिए कुछ अमूमी असूल दिए जा रहे हैं। वो क्या है, आप अल्लाह ताला आपसे सल्लम से फरमा रही है, और जब आपसे सल्लम को ये सिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आर्मी के जितने भी कमांडर्स होंगे, मुस्लिम कमांडर्स होंगे, मुस्लिम आर्मीज के, उन सबको यही काम करना चाहिए। और वो क्या है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को तरगीब दिलाइए किताल की, जिहाद के लिए। जब मोमिनों को तैयार किया जाएगा ना, पीछे उनकी फिजिकल तैयारी की बात हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, उन्हें उभारें भी, उन्हें हौसला अफजाई भी उनकी करें, इनकरेज करें, उन्हें मोटिवेशन दें कि तुम लड़ो। जब तुम लड़ोगे अल्लाह ताला के रास्ते में, तो अल्टीमेटली अजर जो इतना सारा इस सूरत में बताया गया है वो सारा का सारा तुम्हें हासिल होगा। फिर 65 to 71 आयात में भी हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने बताया कैदियों के साथ क्या रवैया होना चाहिए, जब जिहाद होगा तो कैदियों के साथ क्या रवैया होना चाहिए। और इसमें हम देखते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मुसलमान जो हैं वो कमजोर है और उनकी अभी जो ताकत है वो ताकत में नहीं आए, वो पॉलिटिकली इतने ज्यादा अभी इस्टेब्लिश्ड नहीं है, सियासी तौर पर या क्या कहना चाहिए मुआशी तौर पर या दिफाई तौर पर अभी इतने मजबूत नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैदियों के साथ कैदियों को पकड़ के जेल में बंद करना चाहिए, या जहां पर कत्ल की जरूरत है, फांसी की जरूरत है, मारने की जरूरत है, वहां पर मारा जाएगा। ठीक है, और नरम रवैया रखने की कब इजाजत है, जब बेसिकली हमारा ऑलरेडी अपर हैंड है,
मुसलमानों का अपर हैंड है, तब आप कैदियों के साथ नरम रवैया रखें, उन्हें फिदिये पर छोड़ भी दें, उनसे चाहे पैसे ले लें या तालीम के बदले या कोई और फैसिलिटी के बदले उन्हें छोड़ा जा सकता है। लेकिन जब नरमी का वक्त होगा तब नरमी की जाए, जब सख्ती का वक्त है तब सख्ती की जाएगी। यानी हमारे दीन का जो अमूमी असूल है ना, वो है नरमी ही की जाए। लेकिन जब एक्सेप्शंस आ जाएंगी जहां पे सख्ती की जरूरत है, अब वहां भी नरमी करने लग जाओ, कि ये कोई हिकमत वाली बात है नहीं। तो हमारा पूरा का पूरा दीन जो है वो हमें इल्म देता है, तो उस इल्म को नाफे बनाने के लिए, उसका फायदा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें हिकमत भी सिखाता है। तो ये जो हिकमत के साथ फैसला करना होता है ना, हिकमत के साथ अमल करना, ये बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अल्लाह ताला 69 आयत में क्या कहते हैं, फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा, तो अब खाओ जो कुछ तुम्हें मिला है गनीमत में से हलाल और तैयब, मतलब माले गनीमत तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, तैयब कर दिया गया। जब एंड में अल्लाह ताला बता रहे, शुरू में अल्लाह ताला ने बताया था यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि व लिर्रसूल, भाई तुम लोग बहस कर रहे हो ना अनफाल के बारे में, तो ये अल्लाह और रसूल का है, तुम बाकी चीजों पे ध्यान दो। बीच में 41 नंबर आयत में अल्लाह ने बताया कि भाई इसकी डिवीजन ऐसे होगी, और एंड में आके अब आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि भाई ये माले गनीमत मैंने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, इसको पाक कर दिया, अब इसको तुम जैसे चाहे इस्तेमाल करो, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पिछली जो उम्मतें थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की, पुराने रसूलों की उम्मतें पहलों की, उनके लिए माले गनीमत हलाल नहीं था। वो लोग जमा करते थे तो ऊपर से आग आती थी और उसको जला के खत्म कर देती थी। तो आप सल्लम की वाहिद उम्मत, ये उम्मत अल्लाह ताला ने, इस उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह ताला ने तोहफतन अजर के तौर पे माले गनीमत को हलाल दे दिया। और अल्लाह ताला ने जिहाद का ये भी असूल बताया कि अगर तो दुश्मनों की तादाद दुगनी है ना, तो तुम डटे रहो और तुम जम के फिर लड़ाई करोगे। यानी अगर वो 200 है और तुम 100, तब तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा। 2:1 है, ठीक है, डबल है तादाद, तब तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम भाग नहीं सकते। लेकिन अगर इससे ज्यादा तादाद हो जाती है दुश्मनों की और तुम दुगने, वो दुगने से भी ज्यादा हो गए और तुम उनके आधे से भी कम हो, तब तुम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हो, अपना पेंतरा बदल सकते हो, अपनी टैक्टिक बदल सकते हो, पीछे से मदद मंगवा सकते हो, या पीछे जा सकते हो इस मकसद के लिए कि पीछे जाकर नए लोगों को लेकर आओगे, दोबारा से जंग करोगे। ठीक है, जंग से भागना हराम है, लेकिन इस तरह टैक्टिक इख्तियार करना, स्ट्रेटेजी इख्तियार करना, अपनी तदबीर को बदल लेना और दोबारा लड़ने के लिए आना, डर कर भागना मना है, बुजदिली दिखाना मना है, लेकिन तैयारी करके दोबारा आना ये जायज है। तो इस तरीके से तुम करोगे। ये असूल जहां पर मुसलमानों के लिए बता दिया गया, ये गज़वा बदर में सारा कुछ इम्प्लीमेंटेड था, एप्लीकेबल था। उसके बाद के गज़वात में, इवन आज की दुनिया में भी ये सारे असूल जो हमने जिहाद के पढ़े, ये इसी तरह एप्लीकेबल होंगे। फिर आगे आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला अब तारीफ करते हैं मुहाजिरीन की और अंसार की, इनके हिजरत की वजह से, इनके जिहाद की वजह से, इनके आमाल की वजह से। इनको अब तारीफ करने से क्या होता है, जब एक पूरे टेस्ट से गुजर जाते हैं, एंड में स्टूडेंट्स की तारीफ की जाती है, कितने खुश होते हैं स्टूडेंट्स। बाकी जो अजर मिल रहा है, माले गनीमत मिल रहा है, या जन्नत मिल रही है, या जन्नत की बहुत सारी नेमतें मिल रही हैं, वो सब अपनी जगह, तारीफ की अपनी ही बात होती है, एप्रिसिएशन जो होती है उसकी अपनी ही अहमियत है। तो क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, इन्नल लज़ीना आमनु व हाजरू व जाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवू, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ जी, वल्लज़ीना आवू आवौ व नसरू उलाइका बादुहुम औलियाउ बाद, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और जिहाद की अपने जानों और मालों के साथ अल्लाह की राह में, और वो लोग जिन्होंने उन्हें पनाह दी और उनकी मदद की, ये सब लोग एक दूसरे के साथी हैं। वल्लज़ीना आमनु व लम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शै, और वो लोग जो ईमान लाए लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की, तो उनके रब के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं। मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी थे ना जो ईमान लेकर आए थे लेकिन वो मक्का में ही रह गए थे, अभी उन्होंने हिजरत की नहीं थी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई अब वो तुम लोग फिर हम में से नहीं हो, यानी यहाँ पर अब हिजरत फर्ज कर दी गई कि तुम लोग अब फौरन हिजरत करो। गज़वा बदर हो गई, हक वाजे हो गया, मुसलमानों को जीत मिल गई, अब तुम लोग इतने कमजोर नहीं हो कि तुम लोग हिजरत नहीं कर सकते, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम लोग अब अल्लाह के रास्ते में हिजरत करो, मदीना पहुंचो। हत्ता युहाजिरू,
तुहाजिरू, जब तक कि तुम हिजरत नहीं कर लेते अल्लाह ताला का तुमसे ताल्लुक नहीं, यानी अब हिजरत करो। व इन इस्तंसरूकुम फिद्दीनी फअलैकुमुन नस्र, और अगर वो तुमसे दीन के मामले में मदद मांगे तो उनकी मदद करना तुम पर वाजिब है। यानी जो लोग मक्का में ही रह गए ना, हिजरत नहीं कर पाए, तो अब इन लोगों से कहा जा रहा है मुहाजिरीन अंसार से कि उनकी मदद करो, उन्हें वहां से निकालो। इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, मगर किसी के साथ अगर मुआहिदा हुआ है तब उनको नहीं निकाल सकते, यानी किसी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, अदरवाइज सारे मुसलमानों की मदद करो। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे खूब देखने वाला है। तो ये मुहाजिरीन और अंसार की तारीफ की गई। और आगे आयत नंबर 74 में दोबारा हकीकी मोमिन की डेफिनेशन बताई जा रही है हमें। शुरू में बताई गई थी आयत नंबर 2-3 में, ठीक है, और अब आयत नंबर 74 में एंड में आके दोबारा दोनों बातें कनेक्ट की जा रही हैं आपस में। और क्या कहा जा रहा है, वल्लजीना आमनु वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि वल्लजीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये है हकीकी मोमिन। लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, इनके लिए क्या है, इनका अजर भी बता दिया, क्या, मगफरत और रिज़्क़े करीम। और शर्त क्या बताई गई है, ये कौन लोग हैं, जो ईमान लाए, इन्होंने हिजरत की, इन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, और जो अंसारे मदीना थे उन्होंने पनाह दी और उनकी मुहाजिरीन की मदद की। तो ये सारी की सारी खूबियां हैं। बेसिकली ये सारी खूबियां अगर हम इनको एक वर्ड में कंक्लूड करना हो, समराइज करना हो, तो हम कहेंगे ये अल्लाह के रास्ते में ये लोग निकल गए, अपनी जान माल, अपनी हिम्मत, अपनी एनर्जीज, अपना वक्त, सारा कुछ लेकर जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकल गए। और हिजरत की, तो हिजरत भी तो अल्लाह के रास्ते में की ना। सारा कुछ जो इन्होंने जान माल सब अल्लाह के रास्ते में जो लगाया, वो सारा का सारा बेसिकली जिहाद में आ जाएगा ना। जिहाद क्या होता है, अल्लाह के रास्ते में कोशिश करना, तो हिजरत भी अल्लाह के रास्ते में कोशिश करना है। फिर अपने घरों को इन्होंने दे दिया, मुहाजिरीन की मदद की, अंसार के बारे में बात कर रही हूँ। ये सारा कुछ क्या है, ये अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह इनकी बहुत बड़ी एक खूबी है। किसकी खूबी है, हकीकी मोमिन की, ठीक है। शुरू में हमने क्या पढ़ा था, हकीकी मोमिन की कौन सी खूबी पढ़ी थी, कि उनका ईमान पक्का होता है, यकीनी ईमान होता है, इसमें कोई शक नहीं होता। यहाँ पे हम उनकी क्या खूबी पढ़ रहे हैं, कि वो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह करते हैं। आखिरी आयत सूरत की इस टोटल 75 आयतें, ये 75 मैंने एंड में लिखना था। 75 आयत में क्या बात हो रही है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। वल्लजीना आमनु, और वो लोग जो ईमान लाए, मिन बअदु वहाजरू वजाहदू माकुम फउलाइका मिनकुम, और जो लोग बाद में ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद किया, तो ए मुसलमानों वो तुम में से ही हैं, वो भी तुम्हारी जमात है, वो भी उम्मत है, वो भी हिजबुल्लाह है। व उलुल अरहाम बअदुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाह, और जो रहम के रिश्तेदार हैं, यानी जो अकाबतदार हैं, कराबतदार हैं बेसिकली, सॉरी, वो अल्लाह के कानून में एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। अब ये क्या बात हो रही है, ये बात हो रही है कि तुम लोग अनफाल की बात हो कर रहे थे, अनफाल की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। अब आखिर में हम बात करेंगे विरासत की डिस्ट्रीब्यूशन की। क्यों हम बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखा कायम किया था, बहन भाई भाई बनाया था सबको, ब्रदरहुड, अखुवत जब कायम की थी अंसार और मुहाजिरीन में, तो उसमें ये शर्त भी शामिल थी कि जो अंसार या मुहाजिर हैं, जिसकी जो भी विरासत होगी ना, अब जो भाई भाई बन गए ना, ये ऐसे हकीकी भाई हैं कि ये एक दूसरे को विरासत में भी हिस्सा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब अल्लाह ताला ने उस बात को खत्म कर दिया, और आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तो तुम लोगों को माले गनीमत मिल गया है ना, तो तुम लोगों को एक दूसरे की विरासत की जरूरत है नहीं, अनफाल मिल चुका तुम्हें। अब तुम क्या करो, विरासत पे उलुल अरहाम का, रिश्तेदारों का पहला हक है, पहला हक होता है, और पहला हक हमेशा रहेगा। तो मक्का से अब जो लोग हिजरत जिन्होंने नहीं भी की थी, वो भी हिजरत कर लेंगे, तुम लोगों की फैमिलीज कंप्लीट हो जाएंगी। तो उलुल अरहाम जो है वो अल्लाह के नजदीक यकीनन ज्यादा हकदार हैं तुम्हारी विरासत के, तो अब विरासत जो है उन्हें दो, ठीक है। तो अनफाल की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, विरासत की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, बीच में गज़वा बदर और जिहाद के तमाम असूल हो गए। इस सूरत को अब हम कंक्लूड करने जा रहे हैं।
یہ ساری کی ساری آیات ہم نے پڑھ لی. اس میں اب ہم دیکھیں گے سیکشن 1 میں ہم نے کیا پڑھا تھا. دوبارہ سے اس پوری صورت کو سمرائز کریں گے. اور اس سارے کا مقصد کیا ہے؟ اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صورتوں میں سے نا ایک دفعہ گزر جائیں. آپ کو یہ تو پتا ہو کہ قرآن میں کون سی صورت کیا بات کر رہی ہے, اس کے اندر ڈسکشن ہے کیا. اب اس سے زیادہ جب مزید ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں ایک ایک آیت ایک ایک لفظ کو کھول کر پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک اوور ویو دیا جا رہا ہے, جیسے ہم نے سورۃ البقرہ کا بھی اوور ویو پڑھا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اب اس کو ہم کنکلوڈ کرنے والے. پہلی آیت میں بات ہوئی تھی انفال کی, کہ انفال کے حقدار کون ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول. 7ویں سیکشن میں ہم نے کیا پڑھ لیا؟ وراثت کے حقدار کون ہیں؟ ٹھیک ہے, اولو الارحام. پھر ہم نے پہلے سیکشن میں پڑھا تھا حقیقی مومن کی صفت کیا ہے؟ یقینی ایمان لانا. 7ویں سیکشن میں بھی ہم نے پڑھا حقیقی مومن کی صفت کیا ہے, اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. پہلے سیکشن میں بھی اجر عظیم کی بات تھی, اور آخری سیکشن میں بھی اجر عظیم کی بات ہے. تو یہ بیسکلی جو صورتیں ہیں نا, بہت زیادہ ایسی صورتیں جو سرکولر وے میں ڈیزائنڈ ہے, پراپرلی اسٹرکچرڈ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر جاتے ہیں ان کے سیکشنز. یہ چیز ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. تو سیکشن نمبر 2 میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بدر کی وجہ بتائی, جہاد کے اصول بتائے, اللہ نے اپنی مدد کا ذکر کیا, اور بدترین جاندار کی جو مثال تھی وہ دی گئی. اسی طرح جو 6 سیکشن تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا, بدر کی تیاری کے بارے میں دیکھا, جہاد کے مزید اصول بتائے گئے, اللہ کی مدد کا مزید ذکر تھا, اور بدترین جاندار وہ ہے جو بیسکلی ایمان نہیں لاتا. 2 دفعہ بدترین جاندار کا اس صورت میں ذکر آتا ہے, ایک دفعہ سیکشن 2 میں ہم نے دیکھا تھا, دوسری دفعہ سیکشن 6 میں. سیکشن نمبر 3 میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ دوبارہ بدر کی وجہ بتائی گئی کہ وہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں, وہ کفر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اجر کی تفصیل دوبارہ بتائی گئی, اللہ کی مدد کا پھر سے ذکر تھا. یعنی توکل ہم نے کرنا ہے, اور اس میں توکل کریں گے, اسباب مکمل اختیار کریں گے. اللہ کی مدد دیکھیں کتنی دفعہ آ رہی ہے, کتنی دفعہ آئے گی. 5ویں سیکشن میں ہم نے بدر کا منظر دیکھا تھا, پوزیشننگ جو اللہ نے کی بتائی تھی, اور مقصد کی جو بدر کا مقصد ہے اس کی تفصیل ہم نے دیکھی, اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا مزید ذکر. اور جو مڈل سیکشن تھا بالکل درمیان میں, ہم نے سورت کے کیا پڑھا تھا؟ غزوہ بدر کا مقصد ایک بار پھر, اور وہ کیا تھا؟ حق اور باطل بالکل الگ الگ ہو جائے. یوم الفرقان بن گیا, یہ دن یوم الفرقان بن گیا. اس کا ذکر بھی 4تھے سیکشن میں تھا, اور اللہ نے ان کو توبہ کا آپشن بھی دیا کہ بھئی اگر تم مان جاتے ہو تو تم مسلمانوں کی سائڈ پہ آ جاؤ گے, تم معاف کر دیے جاؤ گے. اور اگر تم توبہ نہیں کرتے, نہیں مانتے, ایمان نہیں لاتے, اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے, تو تم دوسری سائڈ پہ ہی رہو گے, کافروں کی طرف ہی رہو گے, تمہارا انجام برا ہوگا. تو یہ ہم نے سورۃ الانفال کو آج ہم نے کنکلوڈ کر لیا. اگلی صورت میں ہم اگلے لیسن میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اگلے لیسن میں ہم دیکھیں گے غزوہ بدر اور احد کے درمیان میں کیا واقعات ہوئے. ٹھیک ہے, اور پھر ہم غزوہ احد سٹارٹ کریں گے. اب آپ کو پتا ہے کہ مسلسل جنگیں ہوں گی, مسلسل غزوات ہوں گے. ہم کوشش کریں گے ان کو بہترین طریقے سے پڑھیں, تاکہ خواتین کو جنگیں اتنی پسند نہیں ہوتی تو ان کا دل لگا رہے, اور بور نہ ہو بیسکلی کوئی بھی. اچھے طریقے سے اچھی ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے. 3rd ہجری میں ہوئی تھی غزوہ احد, یہ 2nd ہجری میں غزوہ بدر ہوئی ہے. 3rd ہجری میں غزوہ احد ہوئی. اب بدر اور احد کے درمیان کے واقعات اگلی کلاس میں ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.